इस ऑनलाइन 12x12 स्टडी मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक लकी जी जुड़ चुके हैं, ट्यूशन जी कुछ ही देर में हमारे साथ में होंगे। आज हम स्टेप नंबर 9 को पढ़ने और उसका अध्ययन करने की प्रोसेस में है। आपसे कुछ निवेदन है कि इस सभी प्रक्रिया में आप सबका सहयोग और साथ अत्यावश्यक है। मुझे यकीन है कि आप सब लोग उत्सुक है और इस बात को समझ लेने के लिए कि जहाँ से हमारी जिंदगी में बहुत सारी वो बातें जो हमारे पूर्वज प्रॉमिस करते हैं वो निरंतर आना चालू होती है। तो आप सबका सहयोग कि आप अपने माइक म्यूट रखें और लास्ट में जब कोई सवाल है या कोई शंका है या आप कुछ हमारे साथ में अपने अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं तो शॉर्ट में और सबको मौका मिले इस दृष्टि से आप पूछ सकते हैं। तो लकी जी, मैं स्टेप नंबर 9 का रीडिंग करीबन एक पैराग्राफ स्क्रीन शेयर करते हैं ना। हाँ जी, इस प्रकार से शुरुआत करता हूँ। ओके, और कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद में जहाँ भी इससे आप उचित समझे मुझे अगर आप सूचित करेंगे तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा। 3 पैराग्राफ पढ़ लेना स्टार्ट के। ठीक। और स्टेप नंबर 9, make direct amends to such people whenever possible, except when to do so would injure them or others. Good judgment, a careful sense of timing, courage, and prudence. These are the qualities we shall need when we take step 9. After we have made the list of people we have harmed, have reflected carefully upon each instance, and have tried to possess ourselves of the right attitude in which to proceed, we will see that the making of direct amends divides those we should approach into several classes. There will be those who ought to be dealt with just as soon as we become reasonably confident that we can maintain our sobriety. There will be those to whom we can make only partial restitution, lest complete disclosures do them or others more harm than good. There will be other cases where action ought to be deferred, and still others in which, by the very nature of the situation, we shall never be able to make direct personal contact at all. Most of us begin making certain kinds of direct amends from the day we join Alcoholics Anonymous. The moment we tell our families that we are really going to try the program, the process has begun. In this area, there are seldom any questions of timing or caution. We want to come in the door shouting the good news after coming from our first meeting, or perhaps after we have finished reading the book Alcoholics Anonymous. We usually want to sit down with some members of the family and readily admit the damage we have done by our drinking. Almost always we want to go further and admit other defects that have made us hard to live with. This will be a very different occasion and in sharp contrast with those hangover mornings when we
alternated between revealing ourselves and blaming the family and everyone else for our troubles. At this first sitting, it is necessary only that we make a general admission of our defect. It may be unwise at this stage to rehash certain harrowing episodes. Good judgment will suggest that we ought to take our time. While we may be quite willing to reveal the very worst, we must be sure to remember that we cannot buy our own peace of mind at the expense of others. थैंक यू अश्विन। जी लकी जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन आज के दिन शराब के पहले घोष से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में मजे से कट रही है। दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ, पिछले शुक्रवार को मैं नहीं जुड़ सका। भूषण अभी थोड़े समय में ज्वाइन करेगा। तो आज हमने लकी जी, आई एम ऑल्सो सॉरी आई डिडंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दोस्तों मेरा अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अब सबका साथ है और ईश्वर की कृपा है कि आज शराब के पहले मुझसे दूर हूँ। थैंक यू। प्लीज गो अहेड। ओके, तो शुरू करते हैं 9वां कदम 12/12 में से। और इसमें हम जैसे 8वें कदम में एक लिस्ट बनाने की बात की थी, अब 9वें कदम में उसका एक्शन की बात हो रही है। यानी कि जब हम उन लोगों की सूची बना लेते हैं जिन्हें हमने किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाया है, ये सूची अपने को आमतौर पे चौथे कदम से मिल जाती है, क्योंकि चौथे कदम में ही जब रिजेंटमेंट की लिस्ट बनती है तो वो रिजेंटमेंट की लिस्ट मेरी अमेंडमेंट्स की लिस्ट ही होती है। और उस रिजेंटमेंट के अलावा भी बाद में मेरे और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम जुड़ जाते हैं जिनके प्रति मेरे रिजेंटमेंट तो है नहीं, शायद मैं उनसे डर रहा हूं या कुछ पैसे लिए हैं या किसी न किसी प्रकार का और कुछ तो अपमान हुआ हो। तो वो सूची बनाने के बाद बिल कहता है कि हम प्रत्येक घटना पर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, अपने भीतर वो सही मानसिक स्थिति विकसित करते हैं जिसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि डायरेक्ट कमेंट्स करने वाले लोग कई वर्गों में बांटे जा सकते हैं। यानी कि कमेंट्स तो हमने करने हैं, क्षमा प्रार्थना तो करनी है, क्षमा याचना करनी है, लेकिन जिनसे क्षमा करनी है वो कई वर्गों में बांटे जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे हमें तब मिलना चाहिए जब हम अपनी सोब्राइटी पर और प्रोग्राम पर उचित विश्वास हो जाए कि हम स्थिर रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनमें हम केवल आंशिक सुधार ही कर सकते हैं, यानी कि पूरी माफी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि पूरी सच्चाई बताने से उन्हें या किसी और को अधिक हानि पहुंची जा सकती है। कुछ मामलों में ऐसे होंगे जिनमें कार्यवाही को कुछ समय के लिए टालना बुद्धिमानी होगी, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां प्रकृति या हालत के कारण हम कभी भी व्यक्तिगत रूप से सीधा संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 डिवीजन किया है बिल ने यहाँ पे। एक, जिनसे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जिनसे डायरेक्ट कमेंट्स हम पार्टली कर सकते हैं, यानी कि पूरा सच ना बताते हुए कर सकते हैं। तीसरा, ऐसे लोग हैं जिनसे अमेंड्स तो करने हैं लेकिन उनको कुछ वक्त के बाद करने पड़ेंगे। और चौथा, ऐसे हैं जिनको हम अमेंड्स व्यक्तिगत रूप से सीधा संपर्क ही नहीं कर पाएंगे। अब आगे चल के इसमें से चौथे का मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो व्यक्ति ऐसे हैं
कि हमारे पीने के काल में हमने उनको बड़ी तकलीफ दी, जैसे मेरे पिताजी। लेकिन जब मैं ए में आया उसके बाद वो उसके पहले ही चल बसे थे। तो ऐसे में डायरेक्ट अमेंड्स व्यक्तिगत रूप से सीधा संपर्क नहीं कर पाएगा मैं, ये बता रहा है बिल। अब ये पहले पैराग्राफ में सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उसने 4 क्लासेस को डिवाइड किया, और ये ध्यान में बिल बता रहा है कि किसी को चोट ना पहुंचे और हमारा संयम भी सुरक्षित रहे। पैरा 3 में जो 2 और 3 हमने पढ़े, 1, 2, 3, उसमें ये बिल बताता है कि हम जब ये ए में शामिल होते हैं तो कुछ प्रकार के डायरेक्ट अमेंड्स करना शुरू कर ही देते हैं। जैसे मैं घर पे आया 2-3 मीटिंग्स होने के बाद में, और पहली मीटिंग मेरी हॉस्पिटल में हुई थी। दूसरी मीटिंग के बाद में घर पे आया तो मैंने बोला मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस 2 मीटिंग किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कार्यक्रम को अपनाने जा रहा हूँ। मैं अभी रेगुलर मीटिंग करूंगा, इसमें मुझे बड़ी राहत मिल रही है। दिल कहता है ये जिस दिन मैं ये कह देता हूँ उस दिन से ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है अमेंड्स की। देखिए क्या वो कनेक्शन लगा रहा है यहाँ पे। इस क्षेत्र में सामान्यता समय या सावधानी का ज्यादा प्रश्न नहीं होता, क्योंकि मैं घर पे आके बताता ही हूँ। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम घर में प्रवेश करें हम सबको यह शुभ समाचार सुनाएं। पहली मीटिंग में शामिल होने के बाद या एक ही बुक पढ़ने के बाद हम में से अधिकतर लोग परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठकर खुले मन से ये स्वीकार करना चाहते हैं कि बीते वक्त हमने कितना नुकसान पहुंचाया है। लगभग 1 हफ्ता होने के बाद में मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा, तब तक मैं बहुत लोगों की लगभग 7 दिन मीटिंग करके और हर मीटिंग में 5-6 लोगों की शेयरिंग सुनते सुनते मेरे को ये भी अनुभव हो गया था कि बहुत लोगों का नुकसान पहुंचा है। तो मैं अपनी पत्नी के साथ ही बैठा, ऐसे ही गाफिल क्षण में मीटिंग के बाद हाथ में हाथ लेके उसको मैं बोल सका, मैं आज समझ पा रहा हूं कि मैंने पीते वक्त कितना नुकसान किया है। अक्सर हम और भी आगे बढ़कर अन्य दोषों को भी स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन बिल कहता है कि भाई भावनिक होने की जरूरत नहीं है, जिनके कारण हमारे साथ रहना दूसरों के लिए कठिन हो गया था। क्योंकि पहले जब हम बात करते थे, यहाँ पे एक और उदाहरण देता है, तो हैंगओवर वाली सुबह की बात करता है, तो बिल्कुल विपरीत होता था। जब बात करना चाहते थे तो हम आपस में बारी बारी खुद को कोसते थे, और अगर मैं ज्यादा टारगेट किया जाता हूं तो तुरंत दोष देने लग पड़ता हूं, ये तेरे कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। उस मुकाबले से बिल इस बात की तुलना करता है कि मैं जब ये मीटिंग्स होके आता हूं तो मैं खुले मन से, शांति से, ऊपरी तौर पे ही सही अपनी बात कहता हूं, और जिसमें अपना अफसोस जाहिर करता हूं, और जिसमें ये स्वीकार करता हूं कि मैंने चोट पहुंचाई है, मैंने नुकसान किया है। हमें केवल अपने दोषों का सामान्य स्वीकार ही करना चाहिए। यहाँ पे बिल हमें एक ताकीद देता है कि इस चरण पे, जब शुरुआत के दिनों में हम ए में आते हैं, इस चरण पर पुरानी पीड़ादायक घटनाओं को फिर से खोलना शायद बुद्धिमानी नहीं होगी। क्योंकि अभी अभी जुम्मा 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो गए हैं और मैं भाव विभोर हो गया हूं, क्योंकि मैं शराब से दूर रह पा रहा हूं। मुझे खुशी हो रही है कि मुझे एक नई संगत मिली है, एक जीने का तरीका मिला है, और मेरा भविष्य सुरक्षित होता दिखाई दे रहा है। शराब के बिना जिंदगी सुहानी दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ ही मीटिंग में शेयर करते और सुनते सुनते वो गिल्ट और खेद की भावना निर्माण होने के कारण शायद मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत के दिनों में ये नहीं करना चाहिए। बिल यही करता है कि भाई सही निर्णय शक्ति, गुड जजमेंट विल टेल अस, ये सुझाएगी कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बुरा सच बताने के लिए तैयार हो। हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने मन की शांति दूसरों की कीमत पर नहीं खरीद सकते। यानी कि इस पैरा 3 का बिल ये आइडिया दे रहा है, इसमें कुछ मुख्य संदेश ऐसे है कि सुधार की शुरुआत घर से होती है, अमेंड्स की शुरुआत घर से होती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए,
अपनी शांति दूसरों की तकलीफ बनकर रह जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। ईमानदारी के साथ साथ संवेदनशील और विवेक भी जरूरी है। तो पहले 3 पैरा में अमेंड्स में अमेंड जिनको हमने करने हैं उनको 4 भागों में 4 डिवीजन कर दिए बिल ने। फिर हमको ये भी बताया कि ए में आने के बाद मद्य मुक्ति की खुशी और अपने किए पे अफसोस हमें अपने परिवार से कुछ माफी मांगने को लगाएगा, लेकिन वो शुरुआती दौर की माफी है, तो हमने उसको ऊपरा ऊपर ही रखना चाहिए, जल्दबाजी में गहरा नहीं जाना चाहिए। पैरा 4 अश्विन। जी लकी जी, मैं सभी हमारे उपस्थित सभासद साथियों की तरफ से और रिवाइवर जूम की तरफ से कुशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। कुशन जी, शुड आई गो विथ रीडिंग और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से लकी ने बहुत अच्छा समअप किया है। मुझे सिर्फ एक ही स्टोरी या ऐड करनी है इसके ऊपर कि मैं नया नया रिहैब सेंटर में से बाहर निकला था और बड़ा उतावला था कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब नया नया ज्ञान प्राप्त किया था कि अमेंड्स करनी है, रिश्तों को सुधारना है। और वैसे भी वहां पर 4 महीने अंदर सेंटर के अंदर बंद होने की वजह से जो बीता हुआ था और उसमें मेरी गलतियां क्या थी वो इतनी उभर कर आई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जितने जल्दी इनसे सबसे छुटकारा मिलेगा वो बेहतर होगा। और मुझे याद है कि सबसे पहली अमेंड्स मैंने करनी चाहिए थी, वो थी अपने पत्नी के साथ। मतलब मेरी जो इनसिक्योरिटीज थी, मुझे जो लग रहा था कि जो टूटने को आया है उसको पहले पकड़ के सिलाना मैं चाहता था। तो मेरे जो 2-3 समस्या इमीडिएट प्रॉब्लम्स थे, उसमें से एक था मेरे बीवी के साथ अमेंड्स, दूसरा था मेरे बॉस के साथ अमेंड्स। तो बीवी तो जितना मैं सब कुछ नॉर्मलाइज करने के लिए बेताब था, उतनी ही शायद वो भी बेताब थी नॉर्मलाइज करने के हेतु। तो जो बीती बातें थी, उसने भी एल-एनॉन की मीटिंग्स अटेंड की थी, तो वो भी जानती थी कि भाई ये 4 महीने के बाद में बाहर आएगा, तो इसकी सोबराइटी को मजबूत होने के लिए कुछ समय तो देना पड़ेगा। तब तक पुरानी बीती कड़वाहट अगर रिश्ते में आ जाएगी तो तकलीफ होगी। तो वो भी संभल संभल कर, जैसे बोलते ना कि छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, वैसे वो भी संभल संभल कर ही कदम डाल रही थी। मैं भी, मुझे याद है वो दिन, मैं जिस दिन वो रिहैब से घर पे आया था, उसी ने दरवाजा खोला था और वो दिन रात भर बैठकर हम लोग एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे, ट्राइंग टू मेक अमेंड्स, ट्राइंग टू कि मेरा जो अफसोस था कि मैं जिस प्रकार से गैर जिम्मेदार जिंदगी जिया हुआ था, वो मैं उसके सामने बोलना चाहता था। और वो मुझे बताना चाहती थी कि मैं तो बीमार था, लेकिन शी वॉज रिस्पॉन्डिंग, यानी मेरी हर गलती के लिए उसका जवाब भी तो गलती से ही आ रहा था, ये वो जवाब दे रही थी। तो ये अमेंड जो थी, ये काफी झट से शुरुआत हो गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि हो गई, क्योंकि उसके दाग तो अभी तक, उसकी जो निशानियां है वो तो अभी तक 34 साल अभी होने को आए, लेकिन अभी भी उसकी निशानियां दिखाई देती है। लेकिन शुरुआत जो होती है अमेंड्स की, वहां से शुरुआत हो गई। लेकिन जो दूसरी अमेंड मैं करने को गया था, वो मेरे पूरी तरह से अपने स्वार्थ से गया था। मैं अपने बॉस के पास गया था अमेंड्स करने के लिए, और मैंने उनकी अपॉइंटमेंट मांग ली। 4 महीने मैं बिना बताए, कुछ भी बताए गुल हो गया था। मेरे फैमिली ने बाद में जाके लेटर वेटर सबमिट किए थे कि ड्यू टू
सब मेंटल प्रॉब्लम्स, उसको एडमिट होना पड़ा वगैरह वगैरह। सबको पता चल गया था कि ये कुछ नहीं, ये बेवड़ा है और कहीं ना कहीं भर्ती हो गया होगा, ये सबको पता चल गया था। लेकिन वापस मैं गया, अपॉइंटमेंट मांगा तो उसने अपॉइंटमेंट दिया, और मैं बड़ी उदारता से उसको जब मिलने को गया तो मैंने उसको बोला कि मुझे पीने की समस्या है, आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, और मैं एक रिहैब सेंटर में था, और वहां पर मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के बारे में पता चला, और ये कार्यक्रम के तहत जो लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया है उनको जाके माफी मांगना है। तो मेरे वजह से आपको कुछ भी तकलीफ हुई हो, या मेरे वजह से कुछ भी आपको परेशानी हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलने के लिए आज आया हूँ करके मैंने बड़ा ओपनिंग बिपनिंग करके डायलॉग वेलॉग मारा। मेरा अंदाजा ये था कि वो बोल देगा कि अरे कोई बात नहीं पुषान, होता है, सबसे होता है, तेरे से भी हुआ, कोई बात नहीं, चलो नए से शुरुआत करते हैं, इस टाइप का उसका जवाब होगा। लेकिन भाइयों, उसने टोटली अलग रंग दिखा दिया। उसने पहली बार ही मुझे बोला, ये तेरे नाटक अभी बंद कर, जब भी तूने, तेरे वजह से कितना नुकसान हुआ है तेरे को पता है, और अगर इसके बावजूद बोला तेरी पहचान है सब सीनियर मैनेजमेंट के साथ में, इसके लिए अभी तक तेरे को निकाल दिया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू कम ड्रंक यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस। यानी उसने मेरे जो अमेंड्स करने का जो प्रयास था, उसको भी एक नाटक, एक नौटंकी, एक इज्जत निकाल दी मेरी, इन शॉर्ट, एक सेंटेंस में। और मैं बड़ा अपसेट हो गया यार। मतलब मैं स्पिरिचुअल रिवार्ड ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था कि मुझे माफी मिलेगी और मुझे राहत मिलेगी, मुझे बख्शा जाएगा, लेकिन इसने तो मुझे पूरी तरह से खारिज कर दिया। और मैं पहले तो सेल्फ पिटी में गया और फिर गुस्से में गया। मैं बोला साला समझता क्या आपने आपको, साला मेरे को माफ भी नहीं करता है। यानी बेसिकली आई वॉज नॉट रेडी फॉर दोज अमेंड्स। मैं अपने स्वार्थ के हेतु चाहता था कि वो मुझे माफ करे ताकि मेरी नौकरी दोबारा चालू हो जाए, मेरे पगार दोबारा चालू हो जाएगा। मेरा इंटेंशन ये पूरा स्वार्थ था, मैं कोई अमेंड्स विमेंड्स करने नहीं गया था। ये सचमुच मेरा नाटक ही था, क्योंकि नहीं तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे बुरा जरूर लगता, या मैं प्रयास जरूर करता उसके साथ में रिश्ता बनाने का, लेकिन मैं निकला बाहर उसके केबिन में से तो गुस्से में ही निकला कि मैं साले इसको तो दिखा दूंगा करके। सो जब भी मैंने जाके मेरे इनिशियल स्पॉन्सर के साथ में ये बात की कि मेरा ये तो पूरा एकदम ट्रेजेडी हो गया, तो उसने बोला साले तेरे को ऐसा बोला कौन था ये अमेंड्स करने के लिए। सो ही फॉर द फर्स्ट टाइम टोल्ड मी, ये जो यहाँ पर जो बड़ा खूबसूरत सेंटेंस यहाँ पर दिया है कि टाइमिंग, करेज, प्रूडेंस एंड जजमेंट, ये चार चीजें जरूरी है। कोई भी अपना उड़ गया, मन में आ गया और अमेंड ठोक दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ये सब जो चीजें है, अगर तेरे 8वें कदम में तेरी यादी बनी नहीं है, अगर तूने तेरा जो लिस्ट बनाना है ये लिस्ट बनी नहीं है, और उसको अगर तूने प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ है कि कौन सा अभी का अभी, कौन सा बाद में, कौन सा थोड़े वक्त के बाद, कौन सा बाद में, और कौन सा शायद कभी नहीं हो सकता है, ये अगर तूने किया नहीं है, स्पॉन्सर के साथ में बैठकर तूने डिस्कशन अगर इस बारे में किया नहीं है, तो शायद तेरे अमेंड्स करने का हेतु और तेरे अमेंड्स का एक्सपीरियंस ये तेरे को चाहिए वैसा नहीं होगा। तो ये पहले ही 3 पैराग्राफ पढ़े और मुझे वो किस्सा याद आ गया, इसके लिए मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू शेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पुष्पेन जी। मैं पेज 84 का सेकंड पैराग्राफ से आगे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। Much the same approach will apply at the office or factory. We shall at once think of
a few people who know all about our drinking and who have been most affected by it. But even in these cases, we may need to use a little more discretion than we did with the family. We may not want to say anything for several weeks or longer. First, we will wish to be reasonably certain that we are on the A beam. Then we are ready to go to these people to tell them what A is and what we are trying to do. Again, this background, we can freely admit the damage we have done and make our apologies. We can pay or promise to pay whatever obligation, financial or otherwise, we owe. The generous response of most people to such quiet sincerity will often astonish us. Even our severest and most justified critics will frequently meet us more than halfway on the first trial. आगे पढ़िए। पैरा 4 Easy. रीडिंग अश्विन, पैरा 5। Yes, this हिंदी लेते हैं ना हम लोग। atmosphere, this atmosphere of approval and praise is apt to be so exhilarating as to put us off balance by creating an insatiable appetite for more of the same, or we may be tipped over in the other direction when, in rare cases, we get a cool and skeptical reception. This will tempt to us to argue or to press our point insistently, or maybe it will tempt us to discouragement and pessimism. But if we have prepared ourselves well in advance, such reactions will not deflect us from our steady and even purpose. After taking this preliminary trial at making amends, we may enjoy such a sense of relief that we conclude our task is finished. We will want to rest on our laurels. The temptation to skip the most humiliating and dreaded meetings that still remain may be great. We will often manufacture plausible excuses for dodging these issues entirely, or we may just procrastinate, telling ourselves the time is not yet, when in reality we have already passed up many a fine chance to right a serious wrong. Let's not talk prudence while practicing evasion. So I have read 3 paragraphs. I will go back to page number 84. थैंक यू अश्विन। भूषण ने जो अभी शेयर किया वो अभी इसमें आगे लिखा आ गया कि जैसे हमने परिवार के साथ शुरुआत की, ठीक उसी तरह का दृष्टिकोण कार्यालय या फैक्ट्री में भी अपनाया जा सकता है। हम तुरंत कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचेंगे जो शायद मेरे कलीग्स हैं, शराबखोरी के बारे में सब कुछ जानते हैं और जिन पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, परंतु ऐसे मामलों में हमें परिवार की तुलना में थोड़ा अधिक सावधानी की आवश्यकता होगी। बिल ये ताकीद देता है, संभव है कि हमें कुछ सप्ताहों तक या उससे भी अधिक समय तक कुछ भी न कहना उचित लगे। पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम वाकई ए के सिद्धांतों पर स्थिर हैं, यानी कि ए बीम पे हैं, कि वो ए का नजरिया मुझे समझ में आया है क्या,
इसके बाद हम उन लोगों के पास जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है और हम उसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्श्वभूमि में हम खुले मन से उन नुकसानों को स्वीकार कर सकते हैं जो हमने पहुंचाए और विनम्रतापूर्वक उनसे क्षमा मांग सकते हैं। उनका जो भी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है या देना बाकी है का भुगतान का वादा कर सकते हैं। अक्सर हमारी शांत और सच्ची निष्ठा के प्रति लोगों की उदार प्रतिक्रिया हमें आश्चर्यचकित कर देगी। यहाँ पर हम कुछ कठोर आलोचक भी पहले प्रयास में मिलेंगे। हमसे आधे रास्ते तक मिलने को तैयार होने वाले भी व्यक्ति मिलेंगे। अब ये पैराग्राफ में बिल ये कहता है कि कार्यस्थल पर सुधार करते समय विवेक और धैर्य रखें। पहले अपने संयम को स्थिर करें, फिर कुछ कदम उठाएं। सच्ची शांत ईमानदार भावना अक्सर आलोचकों के दिल को भी नरम कर देती है। पैरा 5 में जब हम लोग हमें स्वीकृति, अप्रूवल और प्रशंसा के साथ प्रतिक्रिया देते हैं तो माहौल इतना उत्साहजनक हो जाता है कि हम अपना भावनात्मक संतुलन खो बैठे हैं और भीतर एक ऐसी इनसैटिएबल एपिटाइट, ऐसी लालसा पैदा हो जाए कि हम लगातार उसी तरह की प्रशंसा मिलती रहे इसकी उम्मीद करें। तो बिल हमें ये ताकीद भी देता है कि कुछ लोग, अधिकतर लोग हमारी प्रशंसा करेंगे और वो प्रशंसा हमें इतनी आदी लगने लगे कि हमें वही उम्मीद सबसे हो पाए, ये गलत है। या इसके विपरीत कई जगह पे हमें स्केप्टिकल यानी कि संशय पूर्ण प्रतिक्रिया भी मिल सकती है। ऐसे दुर्लभ मामलों में हम या तो बहस करने या अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करने की प्रवृत्ति में पड़ सकते हैं या निराश और हतोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन यदि हमने पहले से खुद को सही रूप में तैयार कर लिया है तो ऐसी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे स्थिर और संतुलित उद्देश्य, जिसे स्टडी एंड इवन पर्पस कहता है बिल, से नहीं डिगा पाएगी। यानी कि पैरा 2 में प्रशंसा से फूलना और आलोचना से टूटना दोनों ही असंतुलन है। विनम्रता और आत्म जागरूकता हमें स्थिर रखती है और अगर हम पहले से मानसिक रूप से तैयार हैं तो किसी भी प्रतिक्रिया से हमारा उद्देश्य नहीं डगमगाएगा। ये प्रमुख संदेश हमें बिल देना चाहता है। पैरा 6, जब हम प्रारंभिक रूप से कुछ अमेंड्स कर लेते हैं तो हम अक्सर ऐसी गहरी राहत का अनुभव होता है कि हम मान लेते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। तो पहले मैंने शुरू के दौर में ही परिवार से कर लिया, कुछ हफ्तों के बाद कुछ अपने सहकर्मियों के साथ काम कर लिया और ऐसा करने पे हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि अभी हमारा कार्य पूरा हो गया। बिल यहाँ बताता है कि मन ऐसा बोलेगा कि थोड़ा विश्राम कर ले यार। और ऐसे में बाकी कठिन या अपमानजनक जो मुलाकातें हैं हम उन्हें किसी तरह टालते रहते हैं मन ही मन। उस समय यह बहुत प्रबल प्रलोभन होता है कि हम उन अप्रिय परिस्थितियों से बचे। कुछ हम बहाने बनाते हैं, कभी हम केवल टालम टाल करते रहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, जबकि सच्चाई ये होती है कि हमें पहले ही कई अच्छे अवसर गवा दिए होते। ये कुछ महीनों और सालों की बात करता है बिल अभी। तो हम ऐसे मामलों में ये हमें चेतावनी देता है कि जब हम बचने की आदत में लगते हैं तब वो विवेक की बात नहीं है, प्रूडेंस की बात नहीं है। प्रारंभिक सफलता के बाद आत्मसंतोष से हमें बचना चाहिए। कठिन मुलाकातों या अपमानजनक सच्चाइयों से भागना नहीं चाहिए। सावधानी के नाम पर डर को छिपाना आत्मिक प्रगति को रोकता है। भय को छिपाना, सच्चा विवेक हमेशा ईमानदारी के साथ कार्य करने में होता है, न कि टालने में। ओवर टू यू पुष्कर। थैंक यू लकी। तो मैं वो मेरे कंपनी की जो अमेंड्स है वहां से शुरुआत करता हूँ। जब भी स्पॉन्सर से बात हुई और उसने बोला कि देख भाई, वो आदमी तेरे को माफ करने के लिए कंपल्शन तो कुछ है नहीं उसके पास,
तू अपने आप को उसकी पोजीशन में डाल के देख। अगर तेरे हाथ के नीचे काम करने वाला आदमी अगर गैर जिम्मेदारी से आता, रोज शराब पी के आता, स्टाफ को उसके खिलाफ भड़काता, ऑफिस पॉलिटिक्स करता, दोपहर से चला गया, वो चला गया तो वापस दूसरे दिन तक दिखाई नहीं देता, इस प्रकार का अगर तेरे हाथ के नीचे अगर कोई आदमी काम करता था तो उसके प्रति तेरे को सहनशीलता होगी या गुस्सा होगा? तो ऑब्वियसली उसने मुझे पर्सपेक्टिव दिया कि जो जिससे मैं माफी मांग रहा हूं उसको एक्चुअली मैंने किस प्रकार का नुकसान पहुंचाया है, क्या मैं उसका एहसास भी है? इज इट जस्ट अबाउट मी कि मेरे को माफी चाहिए, मेरे को दे दो? क्या एम आई इवन विलिंग टू कंसिडर कि सामने वाले को एग्जैक्टली मैंने तकलीफ कैसे दी होगी, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी? जब मैंने अपने हिस्से का काम नहीं किया तो उसको मेरे हिस्से का भी काम करना पड़ा था, और वो जो कि मुझे निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट किसी और हायर अप ने की थी, इसके वजह से उसके लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग भी था, खाली गुस्सा भी नहीं, उसको चिड़चिड़ा भी वो बन चुका था। तो मैंने मेरे बिहेवियर की वजह से उसके अंदर निगेटिविटी कई कई मात्रा में उसमें बढ़ा दी थी। तो मेरे मार्गदर्शक ने बताया कि द ओनली वे यू कैन मेक अमेंड्स, आप एक ही तरीके से इसका अमेंड्स कर सकते हो, वो है आप काम पे रुजू हो जाओ और पूरे तहे दिल से पूरी मेहनत के साथ में आपको दिया हुआ जो काम है वो करने का प्रयास करो। जो पहले आपने दिए हुए प्रिविलेजेस को एकदम तुम्हारा अधिकार समझ के तुमने लिए थे, अभी वो प्रिविलेज नहीं बल्कि अभी तुमको ये सेवा के रूप में करना है और तुम्हारा बेस्ट जो वर्जन है उसका अनुभव तुमको दो। तो दोस्तों मैंने चुपचाप अगले दिन से रिज्यूम कर लिया, धीरे 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 काम करना चालू कर दिया। मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले जो लोग थे उनको मेरा ये रूप देखकर बड़ा अच्छा लगा कि मैं अभी उनके ऊपर काम नहीं डाल रहा था, बहाने नहीं दे रहा था, भाग नहीं जा रहा था, बल्कि वहां पर खड़ा होकर जिम्मेदारी से अपना काम निभाने का प्रयास कर रहा था। तो बहुत जल्द मेरी टीम जो थी, जिनको लार्जली मैंने ही रिक्रूट किया था, ट्रेन किया था, वो एकदम पावरफुल हो गई और बड़ा अच्छा काम होने लगा। 2-3 महीने के अंदर इतना अच्छा दोबारा मेरा काम सेटअप होने लगा कि पहले जो हम एक दूसरे की तरफ नफरत की निगाह से देखते थे, मैं और मेरा बॉस, यानी लार्जली मेरा बॉस मेरी तरफ नफरत की निगाह से देखता था, मेरे अंदर अभी भी अमेंड्स का वो प्रेशर था और मैं एवरी टाइम उसकी पहले तो मैं बिना बोले दरवाजा खुल के घुस जाता था उसके केबिन में जैसे मैं उसका बॉस हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसको पोलाइटली रिस्पेक्ट देते हुए दरवाजा नॉक करके मे आई कम इन ऐसा सब पूछ के मैंने अंदर जाना चालू कर दिया, और मेरे में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चालू कर दिया। ये जब ये बदलाव उसने देखा, पहले तो उसको खातिर था ये नौटंकी है, लेकिन जब ये बार 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 लगातार मेरे हाथ से अच्छा काम भी हो रहा है और मेरा बर्ताव भी एकदम पोलाइट और सॉफ्ट है, ये उसने देखने लगा, तो धीरे धीरे उसका भी उसने जो अकड़ थी वो छोड़ना चालू कर दिया। वो भी मेरे साथ में हंस के बोलने लगा, इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग के टाइम पे मुझे बुलाने लगा, और 3 महीने के अंदर परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं वो ऑर्गेनाइजेशन का एक दोबारा इनसेपरेबल हिस्सा बन चुका था। लेकिन दोस्तों नाम मेरा इतना खराब हो गया था वो इंडस्ट्री में कि आने और जाने वाले हर कंपनी के आदमी की मेरी तरफ देखने की निगाह चेंज हो गई थी और मैं वहां सफोकेट हो रहा था। मैंने मेरे स्पॉन्सर से वक्त मांग के लिया था कि मुझे तो दूसरी नौकरी ढूंढने दे, मेरे को यहाँ से निकलने दे, यहाँ पर मेरी सेरेनिटी खराब हो रही है। स्पॉन्सर ने मुझे 3 महीने तक कोई पर्याय नहीं दिया, और 3 महीने के बाद में जब भी मैंने उसके साथ में मेरी जो इम्प्रूवमेंट्स है वो शेयर की, तो उसने मुझे परमिशन दी कि मैं दूसरी नौकरी ढूंढ सकूं, और मुझे बड़ा रिलीफ लगा कि फाइनली मैं ये जगह से और ये मेरे गिल्ट से और मेरे ये अनबेरेबल पास्ट में से बाहर निकल पाऊंगा। और फिर मैंने नौकरी ढूंढना चालू किया और दूसरी नौकरी मिल भी गई। बताने का मुद्दा ये है कि जब भी दूसरी नौकरी मिल गई और मैंने ये नौकरी छोड़ी, तो वो जो मेरा बॉस था
उसने एक बहुत खूबसूरत लेटर लिखा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल जिनको मैं छोड़ के जा रहा था, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम एक लेटर लिखा और खुद साइन किया और सभी स्टाफ के पास से, ऑफिस के स्टाफ के पास से साइन करवा के मुझे वो लेटर दिया, जिसका मतितार्थ, जिसका सारांश कुछ इस प्रकार से था कि तुम जब ही थे तो हम तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और फिर तुम जब बदल कर दोबारा आ गए और हम तो आज तुमको तुम्हारे बिना रहने का हम विचार भी नहीं कर सकते। ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन इतने 3 महीने के अंदर तुमने कर दिखाया। तुम्हारे टीम में तुमने लॉयल्टी जगाई, तुम्हारे सहकारियों में तुमने प्यार जगाया, और मेरे जैसे कठोर दिल व्यक्ति के दिल में भी तुमने तुम्हारे लिए इज्जत पैदा की। इस आशय का उसने एक मेरे को लेटर दिया जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये रिश्ता जो कभी मेरे से सुधर नहीं पाएगा ऐसे लग रहा था, वो सुधरने में 3 महीने और अतोनात परिश्रम लगे थे मुझे मेरी नई इमेज बनाने के लिए और पुरानी इमेज वाइप आउट करने के लिए। तो एक तरफ प्रोफेशनली ये मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन दूसरी तरफ घर में थोड़ा सा मुझे उल्टा, नॉर्मली जैसे कहा गया है पहले पैराग्राफ में कि घर वाले दे आर क्विक टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि वो चाहते हैं कि तू भाई ठीक हो जाए और अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। तो मुझे याद है कि लगभग सोबराइटी का 1 महीना हो चुका था, और मेरे अंतिम पीने का जो दौर था उसका मैं मेरे भाई के यहाँ पर, भाई और भाभी के यहाँ पर ही रहता था। घर में 1 रुपया नहीं देता था। मेरी बीवी, मेरा बच्चा हो गया इसके लिए नौकरी छोड़ के बैठी थी, और मैं 1 रुपया घर में नहीं दे पा रहा था, उसमें छोटा बच्चा। तो मेरे बड़े भाई को, इन शॉर्ट, अपनी बीवी, अपने 2 बच्चे और ऊपर से मेरा फैमिली का भी देखभाल करने का जिम्मेदारी उसी के ऊपर आया था। तो मेरा भाई और मेरे भाभी बड़े परेशान हो गए थे, अलग अलग प्रकार की चिंता में ग्रस्त थे, और ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। कितनी बार तो मैंने भाई और भाभी को झगड़ते हुए देखा है। मेरी भाभी उसको बोलती थी कि काहे को तो इसको टॉयलेट करता है, घर से निकाल बाहर उसको, उसको तभी अक्कल आएगी, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बातें मैंने मेरे आंखों के सामने होते हुए देखी थी। लेकिन अभी 1 महीना हो गया था, 4 महीने में रिहैब में, और उसके बाद में 1 महीना सोबराइटी का हो गया था। घर में शांतता थी, प्रसन्नता थी, लेकिन एक साइलेंट अंडर करंट था टेंशन का। मेरी भाभी अभी तक मेरे से खुलकर बात नहीं कर रही थी। भाई भी थोड़ा सा डिस्टेंस रख के थोड़ा सा फॉर्मली बिहेव कर रहा था। और मैंने मेरी बीवी के साथ में बात छेड़ी थी कि क्या लगता है हम अपना घर बसाए। फॉर्चुनेटली उन दिनों मैं अंदर ही रहता था, और मेरा थाना में भी एक घर था। जो घर हमको अलॉट तो हुआ था, पोजीशन भी लिया था, लेकिन कोई रहने को नहीं गया था। मेरे माँ बाप कहीं और रहते थे, औरंगाबाद में रहते थे। और मैं मेरे बीवी को पूछा था कि तेरे को लगता है क्या कि तू और मैं और अपना 1 साल का बेटा ये थाना के घर में हम लोग अपना संसार कर सकेंगे। वो बड़ी साशंक थी, उसको डर लग रहा था कि ये, शी न्यू कि अल्कोहलिज्म एज ए डिसीज इज नोन बाय सिंगल सिम्टम ऑफ रिलैप्स। तो अगर दोबारा मैं पीऊंगा तो भाई भाभी भी नहीं रहेंगे उसकी देखभाल करने के लिए, और ये छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएगी। उसने मेरे को ये बात भी छेड़ी कि देख, अगर तूने दोबारा पी ली तो मुझे बच्चा लेकर मैके जाने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं बचेगा। तो अगर ये कदम तेरे को उठाना है तो बड़ी सोच समझ के उठा, क्योंकि यहां से बाहर निकलने के बाद में तो यू टर्न मार के दोबारा आ नहीं पाएगा। मैं भी समझ रहा था, फिर भी हिम्मत करके 1 महीने के बाद में मैंने भाई के साथ बात छेड़ी। मैंने बोला, भाई मैं जानता हूं कि मेरे वजह से तेरे को बहुत तकलीफ हुई है, और मैं जानता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं दे पाया हूं, उल्टा घर में मेरे वजह से तकलीफ और झगड़े ही ज्यादा हुए हैं। तो हाउ कैन आई मेक गुड, मैं क्या कर सकता हूं कि जिसके वजह से तेरे फैमिली में से तनाव कम हो, और
मेरी कुछ मदद हो। तो मुझे लगा था मेरा भाई बोलेगा कि अरे थोड़ा सा जरा फाइनेंशियली ज्यादा कंट्रीब्यूट कर, या थोड़ा सा हाथ बटाना चालू कर, घर के काम वगैरह में बटाना चालू कर, इस प्रकार की बात करेगा। लेकिन उसने उसने अलग ही बात छेड़ी। उसने बोला, देख पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से मैं तेरे फैमिली को संभाल रहा हूँ, तेरे को और तेरे फैमिली को संभाल रहा हूँ, और मैं भी थक चुका हूँ। तो तू क्यों नहीं, अभी सोबर भी हो गया है, तू दारू भी नहीं पीने वाला है, अभी नौकरी भी तेरी वापस चालू हो गई है, पगार भी तेरे पास आ रहा है, तो तू क्यों नहीं अलग रहना शुरू करता है। तो एक तो मैंने मेरे बीवी के साथ में भी बात छेड़ी थी, और दूसरी तरफ भाई ने भी जब ये बात छेड़ी, तो मुझे ईश्वरी संकेत यही लगा कि अगर मेरे भाई के साथ में अमेंड्स करनी होगी, तो मैं उसके साथ में रहकर नहीं, बल्कि उसको छोड़कर जुदा होकर अलग रहूंगा तो ही हो सकेगी। क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगा, उनके सामने रहूंगा, तब तक मेरे को देख के उनको सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, गुस्सा, यही सब चीजें उभर कर आते रहेगी, और मैं कितना भी करूं तो भी वो आधा अधूरा ही रहने वाला है। तो इस मौके का फायदा लिया, मैंने मेरे बीवी के साथ भी बात किया। और मराठी में एक कहावत है, मंडल्या जवळ मंडल्यास लांब, यानी तुम अगर थोड़े से दूर रहोगे तो ही तुम्हारा करीबी रिश्ता जो है वो बना रहता है। डिस्टेंस मेक्स योर हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो कहो तो 1 घंटे में हम मिल सकते हैं, लेकिन नहीं तो, लेकिन अपना अलग अलग 2 घर है। तो मैं थाना में रहने को आया, एंड वहां से हम लोग हर वीकेंड को कभी वो यहाँ आते थे या हम वहां जाते थे। लेकिन अलग होने के वजह से उनको भी वो एब्सेंस रियलाइज हुआ, और उनको भी वो प्यार लगने लगा। जो सिर्फ नफरत और एक गुस्सा और एक टेंशन और एक फ्रस्ट्रेशन था, वहां पर एक नए रिश्ते की बुनियाद होने लगी। तो कई बार साथ में रहकर नहीं, लेकिन अलग होकर भी अमेंड्स की जा सकती है। कई बार थोड़ा सा डिस्टेंस, जिसको तुमने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, उससे थोड़ी सी दूरी रखकर ही, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहा करता था कि शराबी एक तपते हुए सूरज के जैसे रहता है। जो भी उसकी कक्षा में सबसे करीब होता है, वो जल के खाक होता है, और जो सबसे दूर रहता है, उसको उसकी गर्मी की ऊब लगती है, यानी उसको अच्छा लगता है, वो गर्मी अच्छी लगती है उसको, सूरज अच्छा लगता है। लेकिन जो उसके करीब आता है, वो जल के खाक हो जाता है। और वो हमेशा बोलता था कि शराबी के जो सबसे करीबी रिश्ते हैं, जो उसके साथ में रहने वाले, उसके घर में रहने वाले, उसके साथ काम करने वाले, ये सब बर्न हो जाते हैं, ये सब जल के खाक हो जाते हैं। वहां पर उस रिश्ते को सुलझाना कई बार आसान नहीं होता। वहां पर नया पौधा जब भी आएगा, नया पत्ता जब भी आएगा, नई पालवी जब भी फूटेगी, तभी वो रिश्ता दोबारा से संपन्न हो सकता है। लेकिन दूर वाले जो रिश्ते हैं, ये झट से सुधर सकते हैं। इसीलिए मेरे स्पॉन्सर ने एक बहुत बढ़िया तरीका मुझे बताया था कि जो आउटर पेरिफेरी वाले लोग हैं, जिनको मेरे पीने की वजह से सबसे कम दाह हुआ है, सबसे कम तकलीफ हुई है, वहां से शुरुआत कर। यानी किसी से सिर्फ थोड़ा पैसा ही लिया है, पैसा दे दे, सॉरी बोल दे और खत्म कर, वहां से शुरुआत कर, और फिर अंदर 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 आते जा। और उसने यही बोला था कि तेरी बीवी, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा सास ससुर, इनके साथ में तेरी अमेंड्स जिंदगी भर चलती रहेंगी, क्योंकि तूने जो इनके ऊपर जो कहर, जो एक सदमा पहुंचाया है, उसका पूरी तरह से कभी अमेंड्स हो ही नहीं पाएगा। उसका अमेंड्स जो है वो जिंदगी भर रहना पाएगा। तो जो यहाँ पर हमने जो लास्ट वाला जो चौथा पैराग्राफ पढ़ा, कि जो अमेंड्स करना ऐसे लगता है कि नहीं यार, ये अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो जब भी तुम्हारी वो लिस्ट बनाते हो, और जो छोटी छोटी अमेंड्स है वो पूरी हो जाती है, फिर थोड़ी सी गहराई बढ़ते बढ़ते जब भी आप अंदर 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 आने लगते हो, वो टाइम पे सब गिल्ट एंड शेम और फियर एंड ये सब तकलीफ देने लगते हैं। और फिर वो लगता है कि यार अभी तक का जो राइड था वो अच्छा था, मेरे बॉस ने माफ कर दिया, मेरे सहकारियों ने माफ कर दिया, मेरे बीवी ने माफ कर दिया, मेरे
पड़ोसियों ने माफ कर दिया, मेरे फ्रेंड सर्कल ने माफ कर दिया, अभी हो गया ना, अभी क्या बाकी लोगों से मेरा क्या लेना देना। लेकिन फिर आते हैं वो गहराई वाले, जहां पर तुमको लिटरली नजर झुका के ये बात करनी पड़ने वाली है ऐसे, और तुम सोचते हो, मैंने सोचा हुआ है कि ये रिश्ते मैंने टालने चाहिए, ये अमेंड्स करना मैंने छोड़ दिया, अभी तो वो कंपनी भी छोड़ दी है, अभी तो मेरा वो लोगों से कोई ताल्लुक भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, इस प्रकार के विचार मन में आते हैं। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर स्ट्रांग हो तो वो जानता है, और जब भी आप शॉर्टकट मानने लगते हो तो वो सामने से आपको एनकरेज करता है कि भाई इनको किए बगैर कैसे फ्रीडम मिलेगा तेरे को। जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी है, वो गंदगी अगर साफ नहीं होगी तब तक तू खुली हवा में सांस कैसे ले सकेगा। ये छोटे मोटे तो ठीक है, निपट गए और वो अच्छे से हो गए, इसकी वजह से तो तेरी हिम्मत बढ़ी, इसकी वजह से तेरी अभी कार्यक्रम में श्रद्धा बनी है, इसकी वजह से तो अभी तेरे को जाके ये मुश्किल वाले जो अमेंड्स है उनको लेने के लिए भगवान ने तेरे को अभी ताकत दी है, स्फूर्ति दी है। अब ले ले हाथ में, ये जो मुश्किल वाले है वो हाथ में ले ले। सो आगे बिल कहता है आगे का पैराग्राफ में कि जैसा ये कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग माफी स्वीकार करने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा संबंध पुनः ठीक होने लगते हैं, वैसे अपने मन की तैयारी और भीषण जो गंभीर जो हमने किए हुए जो गलतियां है उनकी तरफ मुड़ने लगती है। ओवर टू यू अश्विन। थैंक यू भूषण जी। तो पेज नंबर 85 लास्ट पैराग्राफ जो है वहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। As soon as we begin to feel confident in our new way of life and have begun by our behavior and example to convince those about us that we are indeed changing for the better, it is usually safe to talk in complete frankness with those who have been seriously affected, even though who may be only a little or not at all aware of what we have done to them. The only exceptions we will make will be cases where our disclosure would cause actual harm. These conversations can begin in a casual or natural way, but if no such opportunity presents itself, at some point we will want to summon all our courage and head straight for the person concerned and lay our cards on the table. We need not wallow in excessive remorse before those we have harmed, but amends at this level should always be forthright and generous. There can be one consideration we should there can be only one consideration we should qualify our desire for a complete disclosure of the damage we have done. That will arise in the occasional situation where to make a full revelation would seriously harm the one to whom we are making amends, or quite as important, other people. We cannot be, for example, unload a detailed account of extramarital adventuring upon the shoulders of unsuspecting wife or husband. And even in those cases where such matters must be discussed, let's try to avoid harming
third parties, whoever they may be. It does not lighten our burden when we recklessly make the process of others heavier. Many a razor-edged question can arise in our departments of life where this same principle is involved. Suppose, for instance, that we have drunk up a good chunk of our firm's money, whether by borrowing or on a heavily padded expense account. Suppose that this may continue to go undetected if we say nothing. Do we instantly confess or irregularities to the firm in the practical certainty that we will be fired and become unemployable? Are we going to be so rigidly righteous about making amends that we don't care what happens to the family and home? Or do we first consult those who are to be gravely affected? Do we lay the matter before our sponsors or spiritual advisors, earnestly asking God's help and guidance? Meanwhile, resolving to do the right thing when it becomes clear, cost what it may. Of course, there is no pat answer which can fit all such dilemmas, but all of them do require a complete willingness to make amends as fast and as far as may be possible in a given set of conditions. Above all, we should try to be absolutely sure that we are not delaying because we are afraid, for the readiness to take the full consequences of our past acts and to take responsibility for the well-being of others at the same time is the very spirit of Step 9. Kushanji, Lakiji, this is complete. We have read up to 87. ओके Step 9. ओके सातवां पैरा हिंदी में, जैसा ही हम अपने नए जीवन पथ पर थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं और हमारे व्यवहार और उदाहरण से हमारे आसपास के लोग यह देखने लगते हैं कि हम वास्तव में बदल गए हैं, तो आमतौर पे ये उचित समय होता है कि उन लोगों से पूरी ईमानदारी और स्पष्टता, कंप्लीट फ्रैंकनेस के साथ बात करें जो हमारे पीने से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो यह बात बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हमने उनके साथ क्या किया था। केवल उन्हीं मामलों में हम थोड़ा अपवाद रखेंगे जहां सच्चाई बताने में वास्तव में किसी को हानि पहुंच सकती हो। ये बातचीत सहज या स्वाभाविक तरीके से शुरू की, बिल यहाँ पे हमको तरीका बताता है कि सहज या स्वाभाविक तरीके से शुरू की जाती है, लेकिन यदि ऐसा अवसर स्वयं न मिले तो हमें सारा साहस एकत्र करके सीधे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए और खुले मन से सच्चाई रख देनी चाहिए। हमें उनके सामने अत्यधिक पश्चाताप या आत्मदया में नहीं डूबना चाहिए, परंतु इस तरह के अमेंड्स हमेशा स्पष्ट, ईमानदार और उदार, फोर्थराइट एंड जेनरस होने चाहिए। अगले पैरा में हमारे द्वारा किए गए नुकसानों की पूरी सच्चाई बताने की इच्छा को सिर्फ एक बात से सीमित किया जाना चाहिए, और वो ये है कि कहीं पूरी सच्चाई बताने से उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को वास्तविक हानि ना हो जाए। उदाहरण के लिए, हम अपनी बेवफाई भरे
व्यवहार का विस्तृत विवरण अपने अनजान जीवन साथी को कह डाले, इससे सच्चाई तो सामने आ जाएगी, पर यह उसके लिए असहनीय पीड़ा का कारण बन सकता है। और यहाँ तक कि उन मामलों में भी हमें इस विषय पर चर्चा की आवश्यक हो कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी तीसरे व्यक्ति को चोट ना पहुंचे, चाहे वह कोई भी हो। यानी कि बिल ये कहना चाहता है कि जहां पे हम ऐसे अमेंड्स की बात करें जहां पे हानि पहुंच सकती है, अमेंड्स तो बाजू में रह गए, उल्टा नया तकलीफ खड़ा कर लिया हमने अपने लिए, वो अमेंड्स हमने नहीं करने चाहिए। जैसे कि खास तौर पे बेवफाई के किस्से अगर मैं अपनी पत्नी से बताना शुरू कर दूं तो शायद उसको पता भी ना हो, लेकिन मैं चूंकि अमेंड्स करना चाहता हूं और मैं कंप्लीट और फ्रैंक होना चाहता हूं, मैं दूध का धुला बनना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। वहां पे चेतावनी दी गई है। एक चेतावनी यहाँ पे एक और दी गई है अगले पैरा में, कि अगर मैं जहाँ पे काम करता हूँ और वहां पे अगर मैंने कंपनी के कुछ पैसे शराब पीने में उड़ा दिए हैं, या मेरे सस्पेंस में बैलेंस है, या मैंने अपने खर्चों में बढ़ा चढ़ा के बता दिए, तो ऐसे मामलों में अगर हम बात करेंगे तो शायद तकलीफ में जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर हम चुप रहे तो यह बात शायद कभी सामने आ जाए। तब प्रश्न यह है, क्या हमें तुरंत जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, ये जानते हुए कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और हम शायद फिर किसी जगह पे काम ना पा सके। बहुत से लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उम्र के उस दौर में आते थे जब वो 50 के ऊपर हो गए हैं, और ऐसे में दूसरी नौकरी मिल पाना बहुत कठिन थी। तो इसे सुधार के नाम पर क्या मैं संकट में अपने परिवार को डाल दूं क्या? यानी कि अगर मैं सच सच बता दूं, मुझे नौकरी से निकल दिया गया, मेरा घर परिवार मेरी सैलरी से, मेरी तनख्वाह से, मेरी आमदनी से चल रहा है, तो ऐसा सच बताने से मैं अपने परिवार का नुकसान कर दूं। तो ऐसे में बिल यहाँ पे कहता है कि हमें पहले उन लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए कि जिन पर इस निर्णय का गंभीर असर पड़ेगा। हमें मामला अपने स्पॉन्सर या स्पिरिचुअल एडवाइजर के सामने रखना चाहिए, और सच्चाई तब स्पष्ट हो तो ये संकल्प रखते हुए कि जो सही है वही करेंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो वक्त आने पे। बेशक ऐसी स्थितियों के लिए कोई एक इमीडिएट आंसर तो है नहीं। इसके लिए हर स्थिति में ये जरूरी है कि हम पूरे मन से सुधार करने की पूर्ण इच्छा रखें। सबसे बढ़कर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम डर के कारण सुधार को टाल तो नहीं रहे हैं। यानी कि इन 3 पैरा को देखें तो हम हर सुधार विवेक, साहस और जिम्मेदारी का संतुलन है। डर सुधार को रोकता है, इसलिए ईमानदारी में साहस जरूरी है। अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना और साथ ही परिवार या दूसरों की भलाई का ध्यान रखना, ये स्टेप 9 की आत्मा है। तो ये अभी तक के जो 3 पैरा पढ़े हैं अश्विन ने, उसका हिंदी में सारांश है। यस क्वेश्चन। तो एक किस्सा मुझे मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो कंपनी ये मैं दोबारा रिहा में से आने के बाद में ज्वाइन किया और वहां पर दोबारा मैंने 3 महीने काम करना चालू कर दिया, तो वहां पर एक ऐसी ऑड सिचुएशन मैंने खड़ी कर दी थी कि मेरे पीने के वक्त में मैं ऐसे कई बार मुझे स्टाफ ने या बाकी लोगों ने आके पूछा था कि तू ऐसे इस प्रकार से क्यों पीता है। किसी ने पूछा क्या तेरे को फैमिली लाइफ तेरा हैप्पी नहीं है, तो मैंने बोला हाँ मेरा फैमिली लाइफ हैप्पी नहीं है। तो क्या हुआ, तो मैंने बोला कि मेरी जो बीवी है उसको मैं प्यार नहीं करता था, लेकिन ये मेरे को जबरदस्ती मेरे गले में पड़ गई और मैंने अभी शादी तो कर ली है लेकिन मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है और इसके वजह से मैं दुखी रहता हूँ। ये मैंने टेप चिपका दी थी और ये अभी सब मेरे जो हितचिंतक थे वो कंपनी में काम करने वाले, उनको ऐसे लग रहा था अरे ये अच्छा लड़का है, यंग है,
अच्छी बातें करता है, इतना कम उम्र में इतना सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है, इसके जिंदगी में इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया, तो इसका हल हमने कुछ निकालना चाहिए। अब वही ऑफिस में एक लड़की थी जो एक जूनियर रिपोर्टर थी। तो मेरे जो ये हितचिंतक थे, वो लड़की मुझे चाहती थी, यानी उसको मैं पसंद था। तो ये लोगों ने जाके वो लड़की के साथ में बात किया कि अगर ये खुद खुश नहीं है अपनी शादी में, तो ये अगर बाहर निकलेगा, ये अगर डिवोर्स देगा अपनी बीवी को, तो तू उसके साथ शादी करेगी क्या? अब ये पूरी स्टोरी चल रही है, मुझे पता भी नहीं था। और कुछ दिनों के बाद में वो लड़की ने हाँ कर दिया कि मैं इसके साथ शादी करने को तैयार हूं। तो वो जो मेरे हितचिंतक जो कलीग्स थे मेरे, एक दिन उन्होंने मुझे सबने पकड़ा। उसमें कुछ औरतें थी, कुछ बुजुर्ग थे, और उन्होंने सबने मुझे पकड़ा और उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि तुम्हें अभी पीने की जरूरत नहीं है, तो तुम अपने बीवी को छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, तुमको पसंद नहीं है। ये लड़की है, खूबसूरत है, तुमको पसंद करती है, तुम इसके साथ शादी करो। वो तुम्हारे पीने के लिए ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगी, लेकिन तुम इस प्रकार से जो पीते हो दिन रात, ये तुमको कम करना पड़ेगा। तुम सोशली ड्रिंक करोगे तो तुम्हारा इसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। अरे बाप रे, मैंने तो सर को हाथ लगा दिया। मैंने तो झूठ टेप पेल दिया था इनको कि मेरा ऐसा ऐसा गले में पड़ गई मेरी बीवी वगैरह, प्यार नहीं है शादी में। और अभी इन लोगों ने तो दूसरी लड़की भी तैयार करके लेके आए मेरे को शादी कराने के लिए। अब फॉर्चुनेटली फॉर मी, वहां से उसके बाद में मैं रिहाब में चला गया, सोबर होके अभी वापस वही कंपनी में आ गया। अभी बिना दारू पी के मैं वापस वही कंपनी में। अभी वो रोज सामने वो लोग दिखे, वो लड़की दिखे, और मैं बड़ी एम्बेरस सिचुएशन में था। मैंने जब ये स्पॉन्सर के साथ में शेयर किया, तो उसने मुझे ये चेतावनी दी थी कि भाई तू ऐसी अमेंड्स मत करना, तू अमेंड्स करने के लिए जाएगा और भलता कॉम्प्लिकेशन लफड़ा करके बैठ जाएगा। मैं बोला लेकिन अभी ये लड़की को, ये मैं गलत था और मैंने झूठ बोला, ये तो बताना चाहिए उसको। तो वो आस लगा के बैठी होगी, और अभी तो मैं दारू भी नहीं पी रहा हूँ और अभी मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे यार, ये अभी 2 महीने पहले शराब पी के मेरे साथ शादी करने के लिए भी सब बात चल रही थी, और अभी ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो उसने कहा कि देख, कि हर समस्या है वो तुझे हल करने की जरूरत नहीं है। तेरे जो वो हितचिंतक जो दोस्त है, उनके साथ में तू बात कर। तो जो सीनियर उसमें से जो बुजुर्ग था, उसको मैंने एक दिन बुलाया और उसको बिठाया। वो 2-4 जने थे जो मेनली ये लीड ले रहे थे, और मैंने उनको बोला भाई जरा गड़बड़ हो गई है। बोले क्या हुआ? तो बोला मैंने ऐसा ऐसा तुमको बोला था, बट दैट इज अ लाई। मेरा लव मैरिज हुआ है और मैं मेरे बीवी को और मेरे बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो टाइम पे मेरे शराब पीने का मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा था मैं ऐसी शराब क्यों पी रहा हूँ। तुमने मुझे पूछा घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम है क्या, तो मैंने ठोक डाला हाँ है डोमेस्टिक प्रॉब्लम, मेरे बीवी से नहीं जमती करके। और आप लोगों ने आगे जाके मेरे हित में ये लड़की के साथ में बात किया, एंड यू गॉट हर रेडी, बट दैट्स नॉट व्हाट इज इन माय माइंड। मेरे मन में ये नहीं है विचार, और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन ना कि वो लड़की ने मुझे प्रपोज किया है, तो मैं वो लड़की को सॉरी नहीं बोलूंगा। तो आप ही मेरा संदेशा उसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं बनती उसके सामने जाने का करके। ऐसा बोल के मैंने वो मैटर वहां पर टटोल दिया। अब इसका हुआ अवसर इतना अलग कि एक हफ्ते के बाद में ऑफिस की सब औरतें जो थी वो मुझे मिलने को आई। अब मेरे तो फट गए। मैं बोला यार अभी ये नौटंकी अभी बढ़ने वाली है। लेकिन वो औरतें बोली कि यू आर जेन्युइनली अ गुड पर्सन, तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। मैं बोला ये क्या हो गया भाई? तो बोलते देख, वो लड़की तेरे को चाहती है, ये पूरा ऑफिस जानता है, तू आसानी से उसको बहका सकता था और उसका गैर फायदा ले सकता था,
लेकिन तुमने सामने से आके तुमने सच्चाई बता दी, और हमने उस लड़की के साथ में ये शेयर कर दिया। एंड दो शी इज a लिटिल डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा उसको नाराजगी है, बट शी इज रिलीव्ड कि कम से कम तुम अभी ठीक हो, तुम अभी दारू नहीं पी रहे हो और तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो एवरीबडी इज हैप्पी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। तो कभी कभी मुश्किल सी अमेंड्स होती है, कभी कभी ऐसी और सी सिचुएशन हमारे लिए लोग ही खड़ा कर देते हैं, हमारे हितचिंतक खड़ा कर देते हैं, और ये हितचिंतक ही फिर वो अमेंड्स करने में हमारी मदद कर देते हैं। ये किस्सा मुझे यहाँ पर शेयर करने जैसा लगा। वैसे ही दूसरा एक किस्सा जहाँ से बड़ी मुश्किल मुझे हुई थी ये अमेंड्स करने के लिए। मेरी मेरी भाभी की जो माँ थी, वो मेरी शादी होने के पहले से जानती थी कि मेरा पीना थोड़ा सा गलत है। तो जब भी मेरी शादी डिसाइड हो गई मेरे बीवी के साथ में, तो उसने एक दफा मेरी बीवी को बुलवा के उसको चेतावनी दी थी, अरे तू किसके साथ शादी करे, ये तो नशेड़ी है, ये बेवड़ा है, गैर जिम्मेदार है, 1 रुपया घर में देता नहीं है। तो मेरी बीवी को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मेरे बारे में बोल रही, क्योंकि वो मुझे कॉलेज से जानती है, और उसको लगा था कि मैं तो एकदम जेम ऑफ अ पर्सन हूँ। उसको मेरा ये दूसरा साइड पता ही नहीं था। उन दिनों मोबाइल नहीं थे, तो एक दफा मिलके चले जाने के बाद में अगले टाइम पे जब टेलीफोन वो 1 रुपए वाले फोन पे बात होगी तभी बात होगी, नहीं तो बात भी नहीं होती थी। तो उसको मेरा ये शराबीपन और मेरे गैर जिम्मेदारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ये भलती औरत ने जाके मेरा पर्दाफाश कर दिया था और मेरा भांडा फोड़ दिया था मेरे बीवी के सामने। और वो बड़ी चिंतित हो गई, और उसने मेरे से आके बात करी, ये ऐसी क्यों बोल रही थी, तेरे बारे में उसका क्या मतलब, तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ क्या, तेरे बारे में इतना निगेटिव क्यों बात कर रही है। अभी मैं जानता था कि ये निगेटिव नहीं, ये सच बात कर रही है, लेकिन मैं बोला साली बुढ़ी दुश्मन मेरे रिश्ते में क्यों खलेल डाल रही है। तो उसके प्रति मेरे को बहुत बहुत रिजेंटमेंट थी, बहुत गुस्सा था। मैं सोबर होने के बाद में भी बहुत समय तक उसको गाली देता था, या उसको मैं मतलब कभी हेल्दी नजर से मैं वो औरत को देख ही नहीं पाया था। दैट वाज वन ऑफ द, जो कहते हैं ना कि जो मुश्किल वाली जो अमेंड्स रहती है, क्योंकि मुझे जब भी वो औरत सामने आती थी तो उसके नजर में ऐसा एक शक भरा एक नजर रहता था कि मैं जानती हूँ कि तेरी ये नौटंकी चल रही है, तू कुछ सोबर वोबर रहने वाला है नहीं, तू कल वापस दारू पिएगा और सबको चूना लगाएगा। वो एक उसकी नजर में एक फील रहता था। और वो मैं उसको उसके चेहरे पे वो ऐसी एक हंसी और वो नजर में वो भाव देखता था, तो मेरे अंदर की वो खुन्नस और बढ़ के आती थी, और मुझे लगता था मुझे ये औरत का मुंह ही नहीं देखने का, मुझे उसको मिलना ही नहीं है। और मैं मेरे स्पॉन्सर को जाके एक्चुअली जब ये लिस्ट में आया तो मैं बोला कि ये औरत को मैं नहीं करेगा, मीन्स मैं आई एंजॉय दैट रिजेंटमेंट। मुझे ये गुस्सा, वो औरत को देखता हूँ तो मेरे को गुस्सा आता है, मैं कैसे जाके रिजेंटमेंट करूँ, मैं उसको माफ ही नहीं कर सकता हूँ। और 8वें स्टेप में तो पहला कंडीशन ये है कि तुम पहले खुद को माफ करो और फिर दूसरे को माफ करो, और माफी की ये बेस है। माफ ही नहीं कर सकूं तो मैं अमेंड्स कैसे कर सकूंगा। और उसने ये जो क्लासिफाई किया था, जो द डिफिकल्ट अमेंड्स, उसमें ये डाला था, देख बोले अभी तक तू कर्ता भाव में है, इसके लिए तेरे को उसमें से छुटकारा नहीं है, लेकिन तू थोड़ा सा साक्षी भाव में आके देख। अभी तू सोबर है, सपोज तेरी बहन है, वो तेरी बहन की शादी होने जा रही है, और जिससे उसकी शादी होने जा रही है वो एक शराबी है, नशेड़ी है, या ड्रग एडिक्ट है, ऐसा पकड़ के चल। अब तू क्या चाहेगा कि तेरी दूसरी एक संबंध है, वो वो तेरी बहन को चेतावनी दे या नहीं दे। समाज क्या चाहेगा, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, धर्म क्या सही कहता है। तो भूषण जी आपका आवाज नहीं आ रहा था। भूषण जी,
आवाज नहीं आ रहा है, आवाज। आवाज नहीं आ रहा कुछ। यार लाइट गया है, लाइट, इसके लिए आवाज नहीं आई। Okay, we'll wait for some time. Please wait. Few minutes, few seconds. तैयार कर लें, हमारे पास वक्त बचेगा इस Question? बार, हाँ हाँ जी तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकेंगे। 10-12 मिनट बचेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेप 8 and 9। yes. So please wait for some time. Let's have a pause. हेलो। हाँ sir, please go ahead. Now we can hear हेलो। you. हेलो। हाँ, we can hear you now. हाँ हाँ, एक्चुअली वो लाइट चली गई। तो आप वो एंगल ले रहे हैं सर, धर्म क्या कहेगा या वो साक्षी होने हाँ, के भाव। तो जैसे एक मिनट, यहाँ से मुझे बाहर निकलना। तो जैसे मैं कह रहा था कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अगर ऐसा चीज में हम लोग जब भी किसी की शादी करने जाते हैं तो हम लोग पूछताछ करते हैं कि भाई लड़का कैसा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। ये हम लोग पूछताछ जब भी करते हैं तो वो पूछताछ के पीछे का मकसद यही रहता है कि जो वो व्यक्ति को जानता हो वो उसकी जानकारी दे, और फिर पूरी जानकारी लेने के बाद में भी तुमको अगर खड्डे में कूदना है तो तुम कूदो। यही होता है ना। तो उसने किया, वो गलत क्या किया? उसने एक लड़की की जान बचाने का प्रयास किया। उसने उसकी फैमिली, वो भी गुजराती, मेरी भाभी भी वैसे गुजराती है और मेरी बहू भी गुजराती है, तो उसने अपना धर्म निभाया। उसने गलत क्या किया? तो मुश्किल था ये मानना, ये स्वीकारना। लेकिन फिर मैंने एक जैसे यहाँ पर बताया है कि गो फेस योर वर्स्ट फियर। तो मैं हम ऐसे ही एक किसी कार्यक्रम में, मेरे ही भाभी के किसी कार्यक्रम में हम लोग वहां पर मिले थे, और मैं सीधा जाके उसके सामने बैठ गया और मैंने उनको बात किया। मैं बोला, मम्मी जी, आपके साथ मुझे कुछ बात करना है। हाँ बोलो ना। तो अभी तक मेरे सोबराइटी के लगभग 2 या 3 साल हो चुके थे, काफी समय बीत चुका था। दीज वर वन ऑफ द लास्ट वंस जो डिफिकल्ट थे। और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, और तभी आपने मेरे बीवी को ऐसा ऐसा कहा था, और नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मतलब मुझे बोलने दीजिए। मैं बिकॉज उसने इमिडिएटली उसको लगा मैं झगड़ा करने को आया या क्या। तो मैंने बोला, आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। इनफैक्ट अगर आपका सुन के वो मेरे से शादी नहीं करती तो बहुत सारा तकलीफ उसके जीवन में से बच जाता। हाँ, मैं शायद थोड़ा सा और बर्बाद हो जाता, लेकिन उसके जीवन में से बहुत सारी कठिनाई शायद कम हो जाती। लेकिन तभी जब भी आपने ये बोला तो मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि मेरा सीक्रेट आपने खोल दिया है। बट टुडे आई रियलाइज कि आपने जो किया वो बड़ा सही किया। और आज मैं अगर आपकी जगह में हूं और मुझे कोई ऐसा गलत करते दिखाई देगा तो मैं भी वही करता था। तो जो मैंने इतने साल मैंने आपके साथ में अगर थोड़ी सी कड़वाहट मेरे पास से रही होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो मेरे प्रति जो मत है उसको मैं पूरी तरह से बदलने का प्रयास करूंगा। तो उसने भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। वो बोली, नहीं नहीं, अभी तो आप बहुत अच्छे बन चुके हो, और अभी तो आप बहुत जिम्मेदार भी बन चुके हो, आपने नया बिजनेस भी चालू किया है, आपकी पत्नी भी उसमें आपका साथ दे रही है, आप अभी बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गए हो। ये सब पुरानी बातें हैं, इनको सबको भूल जाओ। ये जब भी वो सिचुएशन वैसी थी, वो टाइम पे हमने वैसा सोचा, लेकिन अब वैसे आप नहीं रहे हो ना, वो सिचुएशन रही है। तो मैंने भी उसको ये आपके बारे में बोला, इसके लिए आई एम ऑल्सो सॉरी। एंड दोस्तों, वो अमेंड जो है ये मैं कर पाया अंतिम दिनों में। जब अभी वो दोनों नहीं रहे, मेरी भाभी भी नहीं रही, मेरे भाभी के माँ बाप भी नहीं रहे,
मेरे भी सास ससुर नहीं रहे। मेरे सास ससुर की जो अमेंड है वो बड़ी मुश्किल सी अमेंड थी, क्योंकि बड़ा नाजुक रिश्ता है वो। मेरा इतना भयानक पीना होते हुए भी मेरे ससुर ने कभी एक भी बार मुझे टोका नहीं था, रोका नहीं था। कि वो सोचते थे कि अपने जमाई को कुछ बोलने जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा, समाज इसकी परवानगी नहीं देता, और अगर बुरा मान भी जाएगा तो भी तकलीफ बीवी को ही है, और नहीं भी मानेगा तो भी अपनी ही इज्जत जानी है। तो वो कैची में फंस गए थे मेरे सास और ससुर। और एक दफा लेकिन मेरी सास, जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और मेरे फादर वो टाइम पे हाईकोर्ट जज थे, बड़ी हिम्मत थे, क्योंकि वो मेरे फादर से कभी बात भी नहीं करती थी। एक दिन वो और मेरा ससुर हम हमारे घर पे आए अंधेरे में, और मेरे फादर को उन्होंने सामने बिठाया और बोले कि मेरे फादर को बाबा बोलते थे कि बाबा आप ही बोलो, ये कैसे बर्दाश्त करे, इसको ये कैसे चलेगा, इनका शादी कैसे चलेगा, अगर आप नहीं कुछ करोगे तो हम क्या करेंगे। इस प्रकार से उसका पूरा वो जो बड़े आवेग के साथ में, बड़े परेशानी के साथ में, बड़ी भावनात्मक तरीके से उसने मेरे पिताजी को पूछा कि अगर तुम नहीं इसका कुछ कर सकते हो तो कैसे चलेगा। और बड़े शर्म के साथ में मेरे पिताजी की नजर झुक गई थी, और वो उन्होंने बोला उनको कि आप अपनी बेटी को ले जाओ, आप उसकी जिंदगी बचाओ। मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे का क्या होगा आगे, लेकिन आपकी बेटी को ले जाओ और उसकी जिंदगी बचाओ। अब वो ये बोलने को थोड़ी आई थी कि मैं मेरी बेटी को लेके जाऊंगी, वो तो यही बोलने को आई थी कि अपने बेटे को सुधारो। लेकिन इतना नाजुक वो परिस्थिति हो गया था कि मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर के बीच में एक वो ईगो इशू, एक तनाव जैसा वो बनने जा रहा था। और शायद अभी भी मेरी माँ ने मेरी सास को उस बात के लिए माफ नहीं किया है। अभी दोनों 90 साल के आसपास की हो गई है, लेकिन वो जो इंसल्ट अपने बेटे की वजह से, जो इंसल्ट भी नहीं कह सकते, उसने तो खाली एक पूछने का काम किया था कि कैसे कैसे बर्दाश्त करें हम इसको, और कैसे हमारी बेटी इसके साथ में जिंदगी बिताएगी। ये खाली उसने एक इंक्वायरी की थी। लेकिन मेरे पिताजी ने जो बोला, मेरी बीवी ने तभी भी बोल दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं रुकने वाली हूँ, मैं उसके साथ ही रहने वाली हूँ। बाद में जब भी मेरी शराब बंद हो गई, मैं ठीक हो गया, हमने नया घर बनाया थाना में, तो कुछ नहीं था मेरे घर में। और मेरी सास को भी शायद वो एहसास रहा होगा कि मैंने ऐसी कड़वाहट बोली, और मेरे ससुर को भी लगा होगा। तो मेरे घर में कुछ नहीं था, बर्तन भी नहीं थे, तो मेरे सासू ने जाके मेरे पूरे घर के बर्तन, मेरे बीवी के साथ में जाके घर के बर्तन लेके आए, और पूरे घर के बर्तन मेरे सास ने दिए। और मेरे घर का पहला गोदरेज का कबर्ड था, वो मेरे ससुर ने दिया। यानी गलतियां की थी मैंने, अफसोस होना चाहिए मुझे, अमेंड्स करनी चाहिए थी मैंने, लेकिन समाज के दायरे में और प्रेशर में आकर अमेंड्स करने निकले थे मेरे साथ में मेरे सास और ससुर। ऐसे भी कभी कभी विचित्र और ऑकवर्ड सिचुएशंस हो जाती है, जो मेरे साथ में वो सिचुएशन हुई। लेकिन मैं समझ रहा था, अब मेरी आंख खुल गई थी, मेरे को भी अकल आ गई थी, तो मैंने भी उनको मेरे माँ बाप का ही दर्जा दिया, और मैंने भी जितना हो सके, मेरे से हो सके, जब तक वो मेरे ससुर जिंदा थे तब तक उनके आखिरी दिनों में उनका बेटा उनके साथ में नहीं था, मैं उनके साथ में था। आज भी उनका बेटा उनका ज्यादा, मेरे सास का ज्यादा ख्याल नहीं रखता जितना मैं उनका ख्याल रखता हूँ, क्योंकि द रियल अमेंड मैं समझता हूँ कि जो सिर्फ किसी को माफ करना या किसी से माफी मांगना नहीं है, लेकिन बिल डब्ल्यू ने जैसे 8वें कदम की शुरुआत में कहा था कि टू try and create the best possible relationship with that person,
यानी खाली नुकसान की भरपाई नहीं, बल्कि एक नया खूबसूरत रिश्ता बनाना, एक नए लेवल पर वो रिश्ते को लेके जाना, एक नए मीनिंगफुल गहराई वाले एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और आदर भरे रिश्ते को निर्माण करना, ये मेरा उद्देश्य ये 8वें और 9वें कदम का बिल 8वें पायरी के शुरुआत में हमने सुना कि वो कहता है। और मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे पत्नी को मेरा पूरा भूतकाल पता है, मेरे सभी उल्टे सुलटे काम पता है, मेरे सास ससुर को और मेरे माँ बाप को, और हर चीज मेरे जीवन की जो भी चीजें हैं वो मैंने खुलकर एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर उनके साथ में बात की है कि कैसे हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो मॉरली इनकरेक्ट होती है, लेकिन वो टाइम पे वो सही लगती है। और टुडे आई पर्सनली फील कि खाली मैं उनके ऊपर से छुटकारा नहीं, बल्कि वो सभी जो लोग मेरे साथ में उसमें जो अटके हुए थे, जब भी टांग में टांग फंसी हुई थी जिनकी, वो सभी उसमें से मुक्तता प्राप्त कर चुके हैं। जो भाभी जिसके साथ में मेरा बहुत सीरियसली स्ट्रेन रिलेशनशिप हुआ था, अभी 2 महीने पहले वो गुजर गई, लेकिन गुजरने के पहले जब भी बीमार थी और मैं उसको मिलने भी जाता था, उसको ताकत नहीं रहती तो उठ के बैठती थी और मेरा बड़ा बेटा आ गया करके बोलती थी। तो ये जो भाव है, ये जो रिश्तों की जो गहराई है, ये तभी समझ में आती है जब हम पूरे तन मन और पूरे बैलेंस के साथ में, पूरे सूझबूझ के साथ में वो रिश्ते की अहमियत को परखते हुए उसको दोबारा खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत छोटा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन वो एक बहुत खूबसूरत ऊंचाई पर वो रिश्ते को लेके जा सकता है। इतनी ताकत है ये 8वें और 9वें स्टेप में। दैट इज वाई दी स्टेप्स आर नोन एज दी स्टेप्स ऑफ सोशल रिहेबिलिटेशन। तो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ सवाल होंगे, शायद 29 हो गए, 10-29 हो चुके हैं, तो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुष्कर जी एंड लकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैट बॉक्स में हमारा 7th एडिशन का सेल्फ सपोर्ट का विठल राज उम्बरकर जी का लिंक दिया है, और उस पर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो भी इच्छुक है, विलिंग है, तो कर सकते हैं। हमारा जो जूम का जूम की जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी हम अ, उनका ये जो सेल्फ सपोर्ट का ये है वो डालेंगे, तब भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग का समय हो चुका है, तो क्या हम थोड़ा किशन जी, लकी जी, कुछ सवालों को ले या सेरेनिटी प्रेयर के बाद? टाइम मीटिंग का हो चुका है, लेकिन अगर किसी को बर्निंग डिजायर होगा, किसी को कुछ बात करना होगा, या कोई खास कोई सवाल मन में होगा तो जरूर पूछ लीजिए, है ना सर? या थोड़ा देर सेरेनिटी प्रेयर के बाद में भी हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। अगर सवाल नहीं होगा तो सेरेनिटी प्रेयर ले लीजिए, समय हो चुका है। जी, तो प्लीज ज्वाइन मी इन serenity prayer revision. We will say it together. God, grant us Accept. courage to change the things and wisdom to know the difference.